Good morning, everybody, and my name is Ajay Sethi. On behalf of Kayaplat Wellness, आज की इस खूबसूरत सुबह इस शार्पनिंग द सॉ सैटरडे में मैं आपका स्वागत करता हूं. Why we call this day sharpening the saw Saturday? Because working with thousands of people over 26 years, I have learned and I have realized that weekends become weekends. बहुत सारे लोगों के लिए सप्ताह का एंड वीक एंड कमजोर पक्ष बन जाता है. For me, weekends were the time to prepare. For me, weekends were the time to train myself. For me, weekends have been the time to get better. We would have this Saturday and the weekend will be sharpening the saw Saturday. Abraham Lincoln once said, अगर मेरे पास 6 घंटे का वक्त है एक पेड़ को काटने का, तो I will use 4 hours to sharpen the saw. And from that background, These weekends are dedicated to sharpen our saw. इसका मतलब है हम अपने माइंडसेट को, अपने एटीट्यूड को, अपने एप्टीट्यूड को, हम वो स्किल सीखे, हम वो अनुभव ले, हम वो नॉलेज गेन करें, हम अभ्यास करें उन चीजों का जो हमारे जीवन को, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाती हैं. All the new guests, we acknowledge your presence, and at the onset I respect and appreciate that you have taken the time to join us this morning. मुझे एक प्रॉमिस आपके साथ करना है कि आज का जो 1 घंटा आप हमारे बीच में बिताएंगे, आप अंत तक बने रहें. Keep your videos on and get the feel of this community, get the feel of the energy, get the feel of the vibration, get the feel of, and keep reading the chat box, because these sessions are designed with a purpose, the purpose to reach out and help each and every one of us. And now this community, these sessions got started at the peak of pandemic, where people were suffering. They were locked out in their homes and they had issues with their health, and they reached out to us and they wanted support system, a mechanism जिससे वो अपनी सेहत का ख्याल रख सके. और ऐसे समय में हमने इस कम्युनिटी की शुरुआत की थी. We started from 8 cities. And now we have crossed 118 cities and 5 countries. We sharpen the saw by respecting and spending time with our elders. This namaskar to all the senior citizens. इस सेशन के खत्म होने के बाद अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करना है, उनके साथ कुछ समय बिताना है. उनके पास जो ज्ञान है, उनके पास जो अनुभव है, उनके पास जो विजडम है, उसका लाभ लेना है. Spend some time every Saturday, Sunday with the elders in your family. Another way to sharpen the saw, weekends के समय आप ऐसे टीचर्स, ऐसी ट्रेनिंग्स, ऐसे सेशंस में जाइए जहां से आपको कुछ सीखने को मिले. And this is one such session. Can we all virtually vibrate? जितने भी फर्स्ट लोग हैं उन लोगों के लिए, और ये वाइब्रेशन इसलिए आप भी ये करिए so that we get frequently vibration से हम लोग aligned हो जाएं. We celebrate this day in Kayaplat with special story of the week. Every week on every Saturday we celebrate the success of some of our members जो आपकी तरह आज से कुछ समय पहले हमारे बीच में आए थे. They had struggled, they had pain, they had challenges. Most people who come to us, either they are grossly unhealthy and overweight. Some people come to us who are underweight, and very few people come here to improve their fitness and performance. But the best क्या है कि इस कम्युनिटी में आके अनहेल्दी, ओवरवेट लोग हेल्दी हो जाते हैं. जो लोग हेल्दी होते हैं वो फिट हो जाते हैं, और जो लोग फिट होते हैं उनकी पीक परफॉर्मेंस बढ़ जाती है. पीपल फ्रॉम एवरी बैकग्राउंड, डॉक्टर सुशील मेवाड़ा, इंजीनियर, लुक एट दिस, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, टीचर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेक्चरर, हाउसवाइफ, होममेकर, इंजीनियर, CPA, हाउसवाइफ, टीचर, नर्स, teacher, housewife, homemaker, IT, business analyst, agriculture, academician. Look at this. Chemist, homemaker, corporate professional, now wellness coach, awesome. Housewife, chartered accountant, wellness coach, farmer, amazing. Can you see? Homemaker. This is what this community is all about. This is what makes this community special. Counselor, corporate professional, teacher, insolvency professional. Can you imagine this? IT professional, actor. This is what is the complete background. Okay, 16-year-old to 84-year-old. कितने लोगों को यहाँ पे joint family feeling वाली feeling आ रही है? We have the grandmothers and the grandfathers and the nieces and the nephews. Everybody is part of this community. पिछले 26 वर्षों में हजारों लोगों के साथ काम करते करते मैंने देखा है. Most people think कि weight, चाहे वो बढ़ा हुआ हो, चाहे वो अंडरवेट हो, वो फिजिकल प्रॉब्लम है. $1 million
worth of information and education I am giving you. यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, they will also reciprocate and weight एक फिजिकल इशू है. जितने भी एक्सपर्ट्स के पास आप जाएंगे वो आपको ना फिजिकल लेवल पे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं. वेट फिजियोलॉजिकल इशू है, बट दिस इज नॉट ऑल. फिजियोलॉजिकल इशू, हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड, आपकी बॉडी के अंदर किस तरह, आपकी बॉडी की केमिस्ट्री क्या है. जिन लोगों के हार्मोन इम्बैलेंसेस हैं, जिनके साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, अगर आप समझते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम और नहीं समझते हैं, जब आप ज्वाइन करेंगे इन आवर एजुकेशन सेशंस, यू विल अंडरस्टैंड, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इट इज नॉट जस्ट फिजिकल, इट इज आल्सो फिजियोलॉजिकल. बट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम फिजिकल टू फिजियोलॉजिकल, देन आल्सो यू आर लुकिंग एट इट वेर अ लिमिटेड पर्सपेक्टिव. आप तब भी बहुत छोटे नजरिए से इसको देख रहे हैं. मोर देन दैट, मोर देन फिजिकल, मोर देन फिजियोलॉजिकल, इट इज साइकोलॉजिकल इश्यू. कैसे ये आपकी साइकी को अफेक्ट करता है, you will understand what I mean by that psychological. Because this story has that, on one side, imagine a young engineer with a government job, और क्या चाहिए, but this young boy was suffering with poor health. He was posted in places where he was not able to take care of his physiological need. बहुत कोशिश करने के बाद भी, at 6'1", he was around 50 kg, 53 kgs, grossly underweight. Along with underweight, he had major health issues, from piles to digestion problem to irritation to mood swings to anger and frustration of not having been able to take care of himself. अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर पाना, अपने अब जानते हुए भी अपना ध्यान नहीं रख पाना. On the other side, another brilliant girl who national hockey, state level hockey player in school, college days, went into academics, trying to become like living the life. The brothers are all engineers and everybody in the family gives emphasis on education. पढ़ाई के चक्कर में, पढ़ाई पे फोकस होने के कारण she lost connection with her health, and at 5'1" she went up to become 85, 5 फुट 1 इंच की हाइट पे 85 किलो तक. Despite trying many things, she was not able to lose weight. And on one side, this boy was thin and tall and thin, having major issues. On the other side, the girl was short and overweight, but weight wasn't the only problem they had. And they will share with you better than what I would be able to share with you. They had major other issues, and which I say psychological, mentally, emotional issues. All about 20% exercise, 80% nutrition, and 100% attitude. This 20%, 80%, 100% has formed the basis of this community. Physical, physiological and psychological. जब ये तीनों चीजों पे हम काम करते हैं तो आपको ऐसे परिणाम मिलते हैं जो अभी आपको देखने को मिलने वाले हैं. With these words, let me present to you this amazing, beautiful, loving, good-hearted couple, नेहा एंड पारस सैनी. मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देख के और आपकी स्टोरी को पढ़ के, आपके बारे में जान के. आई माई रिस्पेक्ट फॉर यू, फॉर योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली हैज इमेंसली ग्रोन. जब आपको ये कमेंट सुनने को मिला, मैं वहीं से चालू करना चाहूंगा आज की स्टोरी, कि जब लड़के वाले आपको देखने आते थे और आपको देख के बोलते थे कि अपनी मम्मी की बहन लग रही है, लड़की कितनी मोटी है, माई गुडनेस, हाउ कैन समबडी बी सो चीप. आई डोंट नो. मतलब कैजुअल कमेंट्स कितनी आसानी से बोल देते हैं, लेकिन भारत की ये परंपरा है. भारत में हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं. शायद भारत में लोग कैजुअली, कैन आई आस्क यू, लाइक ये जब आपके साथ हुआ, यू रोट दैट आई वाज ब्रोकन. आई डोंट नो कितनी महिलाएं यहाँ पे हैं, अगर उनको ऐसा कमेंट सुनने का मिले और वेट ज्यादा होने के कारण रिजेक्शन महसूस करने का हो, तो वो कैसा होगा. नेहा, प्लीज शेयर दैट, हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम. सर एक्चुअली जब ये सब हो रहा था, ये सब मुझे अपने रिलेटिव्स, जो लोग मुझे मिलते थे, उन सब से ही सुनने को मिला है हमेशा. और मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ये फील नहीं कराया, लेकिन जब लोगों से मैं ये सुनती थी तो मुझे लगता था कि शायद हो सकता है कि मेरी ही कमी हो. मैंने अपने अंदर वो चीज सेटल कर ली, मेरी ही कोई कमी है, मेरी ही कोई गलती है जिस वजह से शायद ऐसा हो रहा है. मैंने उन लोगों के नहीं सोचा कि क्या वो गलत सोच रहे हैं, या मेरे अंदर वो चीज सेटल हो गई कि हाँ मैं ही गलत हूँ. तो वो नेगेटिविटी मेरे अंदर चली गई. You started feeling not okay. You started feeling inadequate. You started feeling that कि मैं अपना ध्यान नहीं रख पाती हूँ. यस सर, वो इंफीरियरिटी मेरे अंदर आ गई. मेरा कॉन्फिडेंस जो हमेशा से बहुत अच्छा था, मैं स्कूल टाइम में हॉकी खेली हूँ, तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मैं हमेशा ऐसे बोल्ड बिहेवियर करते थे कि हाँ हम खेलते हैं, हम प्लेयर्स हैं. लेकिन सडनली जब ये सब होना शुरू हुआ, हो सकता है कहीं ना कहीं पहले मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया था 12th के बाद, जब मैंने सडनली हॉकी छोड़ा, मुझे एकेडमिक्स की तरफ जाना था.
प्रॉपरली ऐसे हमारे यहाँ समाज में ऐसे रहता है कि स्पोर्ट्स को इतनी अहमियत नहीं देते हैं हम लोग। हम सोचते हैं नहीं एकेडमिक्स में कुछ करना है, स्पोर्ट्स एक सेकेंडरी थिंग है। तो जब मैंने ये चीज शुरू की तो मुझे बहुत बुरा लगने लगा था। मुझे लगने लगा था कि यार ये कैसे हो रहा है, एकदम से मेरा कॉन्फिडेंस, मेरे एकेडमिक्स पर भी इसका गलत असर पड़ा। जो चीज मैं Right. बहुत आसानी से हासिल कर पाती उसके लिए मुझे 8-9 साल लग गए सर। सर मैं 7 साल ऐसी जगह रहा, वहां पे पीने का पानी भी नहीं था। मतलब My हम लोग goodness. सर बारिश का पानी इकट्ठा करके वो पानी पिया करते थे वहां पे। My और goodness. ये सब्जी लाना और ये सब चीजें तो बहुत दूर, 40 किलोमीटर दूर जाओ। तो जैसे हम्म। ड्राई तो भी होता था, दालें हैं, आलू वगैरह है, इस तरह की चीजें हम खाते थे। हम्म। तो सर इतना टाइम मेरा वहां पे निकला तो हेल्थ मेरी गिरती गई। मैं कोशिश कर रहा था वहां से निकलने की, पर नहीं निकल पा रहा था। तो ये चीजें मेरा स्ट्रेस लेवल लगातार बढ़ा रही थी। और मैं Right. धीरे धीरे चीज मेरे अंदर बैठ गई कि मेरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम्म। और ऐसे समय में लाइक आई विल नॉट बी एबल टू गो इनटू डेप्थ, बट यू सॉ ईच अदर, जस्ट वन थिंग दैट अट्रैक्टेड यू टू ईच अदर एंड यू डिसाइडेड टू मैरी। नेहा, सर वन थिंग जो थी, मैंने पारस से एक ही क्वेश्चन किया था, आई वॉन्ट लव एंड रिस्पेक्ट इन माई लाइफ, एंड ही आंसर्ड कि आई विल गिव दैट। देन आई सेड ओके यस आई एम सेटिस्फाइड एंड आई विल मैरी दिस पर्सन ओनली। wow. I think Neha, what you wanted was not something out of this world. मैं सबके बिहाफ पे ये बोल सकता हूँ कि हर इंसान को लव एंड रिस्पेक्ट चाहिए। एंड हमेशा से मैं बोलता हूँ व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। काया पलट में 3 चीजें हम करते हैं, वर्किंग टुगेदर इन टीम्स, ऑनरिंग ईच अदर, दिस इज वेयर द रिस्पेक्ट, एंड सेलिब्रेटिंग लाइक अ कम्युनिटी विच इज लव। दैट इज व्हाई यू आर पार्ट ऑफ काया पलट। कैन यू सी दिस कनेक्शन? हाउ मेनी मैन सी दिस? सर जब मेरे लिए मतलब रिश्तों की बात शुरू हुई तो मेरे माइंडसेट पहले से ये था कि मेरे को मतलब एक इंटेलिजेंट, एक डिसिप्लिन्ड और एक पेशेंस वाली लड़की चाहिए। तो सर वर्किंग लड़की देख रहे थे, घर वाले भी दिखा रहे थे, लेकिन जितने भी बायोडेटा मेरे पास है उनमें सबसे अच्छा मेरे को यही लगा। और सबसे बड़ा इशू हेल्थ का ही आ रहा था, क्योंकि लड़की ओवरवेट थी। तो मैं सोचा जब मैं खुद इतना अंडरवेट हूँ तो मैं किसी को इस चीज के लिए कैसे ना कर दूं। मेरे को भगवान कभी माफ नहीं करेगा यदि ऐसा डिसीजन मैं लेता हूँ। तो मैं इमोशनली उस दौर से गुजर रहा था। And this is the difference. Can you see, ladies and gentlemen? मैंने जिमिंग की सर। Yeah. सर जिम करने से मेरा वेट रिड्यूस हो गया सर, लेकिन वो एक जो मेरे को जिम में क्या होता है सर कि सिर्फ एक्सरसाइज से हम वेट तो रिड्यूस कर लिया मैंने, लेकिन मेरे जो मील जो खान पान था उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुई। मेरा जो इश्यू था, मुझे पीसीओडी का इश्यू था बहुत पहले से। तो पीसीओडी की वजह से सर मेरा वेट कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा था, तो मुझे कोई भी सोल्यूशन नजर नहीं आ रहे थे। तो And we can see your pictures are, and ladies and gentlemen, please look at the pictures which are being there, the situation, the kind of things that they were facing. Yes sir, जैसे ही मैंने वो जिम छोड़ा, शादी के बाद मेरा लॉकडाउन हो गया था, उसकी वजह से मेरा जिम छूट गया, तो उसकी वजह से मेरा वेट फिर से बढ़ गया। और फिर वो जो एक होता है थोड़ा बहुत भी बढ़ता गया, वो मेरे अंदर चलता गया कि मेरा वेट तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, पर वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता रहा और एक्सरसाइजेस धीरे धीरे छूटती गई। तो इज इट अबाउट लीविंग द जिम? क्या आपको लगता है कि जिम छोड़ने से वजन बढ़ता है कि नॉट हैविंग द राइट स्किल्स? एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट दिस डाउन, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट लर्निंग। वेट मैनेजमेंट, योर हेल्थ, योर फिटनेस, लाइफ टाइम हेल्थ, fitness and happiness is a skill, because the gym never taught them the right skills. When you join Kaya Blood, we don't tell you to do something, we initiate you into a process. हम आपको एक ऐसे प्रोसेस में इनिशिएट करते हैं जहां पे आप वो कला सीखते हैं, वो स्किल सीखते हैं, वो हुनर सीखते हैं, जिससे आप जीवन पर्यंत अपने स्वास्थ्य का, तंदुरुस्ती का ख्याल रख सकते हैं। सर मैंने वेट बढ़ाने के लिए बहुत कुछ ट्राई किया है। मैंने रनिंग शुरू कर दी थी जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं था, और खाना पीना भी मतलब मेरे को कुछ पता ही नहीं था कि क्या खाऊं, फिर भी खाता रहता था। और धीरे धीरे ये सारी चीजें गड़बड़ होना शुरू हो गई। पानी वहां पे था नहीं कि वो मतलब पीने लायक हो, और फिर ऊपर से मैंने ये चीजें वो ट्राई करना शुरू कर दिया था, क्योंकि कोई सर मोटिवेशन भी नहीं था, न कोई डायरेक्शन थी मेरे पास। ऐसे ही बस गूगल करके, देख के, यूट्यूब करके चीजें मैंने स्टार्ट करना शुरू कर दी। वो सारी सर बिगड़ गई इन सब चीजों से। सर मेरा फ्रेंड है, हम कॉलेज में साथ थे, हरिंदर सैनी। मैंने हरिंदर का ट्रांसफॉर्मेशन देखा, वो 90+ kg पे, उसकी फिटनेस लेवल देखा,
उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। सेशन होता है ओरिएंटेशन सेशन, हैप्पी टू हेल्प में आजा और अप्रोच समझ और ज्वाइन कर। तो सर मैं आया। सर एक्चुअली जो ट्रस्ट होता है ना, वो मुझे हरिंदर ने जो बताया, मुझे उस चीज पे ट्रस्ट था, उस पर भरोसा था। इतनी चीजें मैं ट्राई कर चुका था तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये अप्रोच मतलब मैंने सुनी नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या। नरेंद्र भैया ने बोला था कि भाभी आपका वेट लॉस का कोई इश्यू है ही नहीं, आप यहाँ बस एक बार आइए और आपका वेट लॉस हो ही जाएगा। तो वी ट्रस्टेड हिम, तो सर हमने फिर साथ में ही ज्वाइन करने का, फिजिकली साइकोलॉजिकली हमें रिलीफ मिला सर। विद इन 7 डेज हमारे जो सोचने की जो वे था वो चेंज होने लगा। वेट मेरा सर 1 kg 1.5 kg ही 1 kg ही गया था, लेस देन 1 kg। लेकिन उस वेट जाने ने ही वो वेट जाना इम्पोर्टेंट नहीं था, जो जिस वे से यहाँ पर चीजें सिखाई जा रही थी, हर इंसान पे ध्यान दिया जा रहा था, वो चीज ने हमें अट्रैक्ट किया कि सिर्फ वेट लॉस नहीं, पारस का वेट गेन का भी यहाँ पे सोल्यूशन है। और फिर उसके बाद हमने अपने चेंजेस को हमने अपनाया और वो जर्नी स्टार्ट हो गई। सर स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ा मतलब लेट जाके मुझे फील होना शुरू हुआ कि मेरे लिए कुछ वर्क करेगा। सर मॉर्निंग सेशन की बात है, एक दिन ऐसे ही सेशन चल रहा था सर, आपका ही सेशन। तो उसमें जैसे मैंने पहले ये सुना था कि पारस वर्सेज अंकित, मतलब लोग जैसे आपस में भाइयों को कंपेयर कर रहे हैं, दोस्तों को कंपेयर कर रहे हैं। तो सर आपका सेशन चल रहा था, उसमें पारस वर्सेज पारस हो गया। मैं सोचा ये क्या हुआ। फिर मैंने वो चीजें मतलब मेरे को रियलाइज हुई कि हाँ ये तो खुद से ही कंपटीशन है, तो मैं ईच डे खुद को इम्प्रूव करता चला गया। सर जैसे वेट गेन में तो मेरा मतलब 1.5 kg गेन हो गया था, लेकिन इंटरनली जो चेंजेस मुझे हुए, एनर्जी लेवल मेरा सुपर्ब हो गया, मेरे को सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, उसमें बहुत आराम मेरे को आ गया। तो जो इंटरनली जो चेंज, मुझे एक सुकून आ गया था अंदर कि हाँ अब मतलब लाइफ अब ट्रैक पे आ रही है, कुछ हो रहा है। सर 1 मंथ में मेरा 3.5 kg वेट लॉस हुआ सर। फर्स्ट मंथ में आपका 3.5 kg कम हुआ था। ओके। यहाँ पे लोगों का 10 kg भी होता है, लेकिन वो बॉडी डिपेंड करता है। सर अमरीश सर ने, हरेंद्र भैया ने हमें गाइड किया कि ये हाँ हर बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। तो आपका वेट लॉस एकदम सही चल रहा है और आप बस जो रिचुअल्स हैं वो फॉलो करिए। सर हमने इसको अपनाने की कोशिश की, अपनी पूरी लाइफ में अपनाने की कोशिश की, तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिलते गए। और इन चीजों की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी थी। तो जब हमने इन्हें अडेप्ट किया तो हमें जो चेंजेस थे वो लोगों को भी दिखने शुरू हुए, हमारे फैमिली मेंबर्स को भी दिखने शुरू हुए। स्टार्टिंग में उन्हें लगता था कि हम बस इतना कुछ कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे पूरी फैमिली ने इसे एक्सेप्ट किया और सबको अच्छा लगने लगा। सर मैं 19.5 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ। 19.5 kg, almost 20 kgs you have lost. सर मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब मुझे क्या खाना है। जो चेंजेस मुझे जिम में नहीं मिले वो सॉल्यूशंस मुझे यहाँ मिले। Sir, I am interrupting you. Neha, would you like to throw some light on this pic particularly? This is not mistyping. Both are 67 kgs. सर ये जो लहंगा मैंने पहन रखी, ये मेरी शादी के संगीत का लहंगा है। जो लेफ्ट पिक है उसमें भी मेरा वेट मैंने जिम से रिड्यूस किया था, वो 67 का ही है। और ये जो नेक्स्ट सेकंड पिक है ये भी 67 kg की है सर। वहां पे मुझे जिम बॉडी ने वेट तो लूज किया, लेकिन वो एग्जैक्ट शेप नहीं मिली जो यहाँ पे 67। और ये शेप लेडीज एंड जेंटलमैन ये इसलिए आती है कि ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है, ये फिजिकल अडेप्टेशन नहीं है। ये इंटरनल केमिस्ट्री चेंज होती है तो बॉडी का कंपोजिशन बदल जाता है, और ये सब पॉसिबल होता है हमारे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज से। मतलब वेट गेन के लिए तो सोचता था कि हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनल हेल्थ इश्यू नहीं होने चाहिए। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि लाइफ में जो चीज हमने, जो हैप्पीनेस की तरफ हम नहीं गए, उस हैप्पीनेस को हमने अचीव कर लिया है। जो हमारा रिलेशन था। एक्चुअली सर फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स टू बोथ ऑफ देम। एंड मैंने भैया का रिजल्ट देखा था सबसे पहले, और उन्होंने मेरे को इंस्पायर किया था इस कम्युनिटी में ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा और उनके कहने से तुरंत ज्वाइन कर लिया। सो टुडे आई गेन मोर देन 4 kg. You gained 4 kgs. Can we all clap? And Ankit, what is your background? What do you do? Actually sir, I am geoscientist in Ministry of Mines. ट्रेनर्स जिन्होंने
उनको तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, इस पारस नेहा ने जो ये प्रोग्राम ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरे के परिवार को बहुत भी ही अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं भी यही चाहूंगी कि ये बहुत ही मतलब आपकी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएंगे इससे। सर मैं ये बोलना चाहूंगा, मेरी मम्मी ने भी काया पलट अप्रोच से मोर देन 8 kg वजन कम किया है। ओह वाओ वाओ। मैं बताता हूँ सर, हाँ जी। क्या है कि पारस से तो मेरी दोस्ती वैसे ही इस कम्युनिटी में हो गई है और मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसको बीच बीच में मैं छेड़ता था और क्या नाम है, हंसी मजाक होता था, मजा आता था। मतलब द कपल इज वेरी, बहुत अच्छा लगता है इस कपल के साथ। क्या होता है ना कि जब आप वेट लूजर्स क्लब के अंदर एक वेट गेनर को आप डाल देते हैं तो क्या इनकी बढ़िया बढ़िया थाली आती थी, हम लोग शेक पी रहे और ये थाली खा रहे हैं तो उसमें क्या है कि हमें बहुत मजा आता था, मतलब कि इसको छेड़ने में बहुत मजा आता था। और बस इस तरह की दोस्ती है और आई एम वेरी थैंकफुल कि इस तरह की जो दोस्ती है बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है। नहीं, ये दोस्ती बहुत नजदीक की है, बहुत दूर की नहीं बहुत है। इस कम्युनिटी में जितने भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं वो जीवन भर के लिए अभिन्न दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि हम सब लोग हर दिन को सेलिब्रेट करना जानते हैं। हम सब एक दूसरे के दुख दर्द को भली भांति परिचित है और हम नाचते गाते उससे निकल रहे होते हैं, खेलते कूदते हम ये काम कर रहे होते हैं। एंड इस कम्युनिटी में आने के बाद है ना बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले, अच्छे अच्छे लोग मिले जो कि दे आर रियली इंस्पायरिंग विद देयर यू नो, दे आर रियली वर्किंग हार्ड और मजा आया। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम हरिंदर। और सबसे पहले तो जैसे आज ये स्टोरी पिक्चर हो रही है ना, तो लाइक मेरे को आज इतनी खुशी हो रही है सर कि मेरी खुद की स्टोरी में मेरे को इतनी खुशी नहीं हुई थी। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँ, और अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी बात नेहा और पारस के बारे में बोल दूं, ये ऐसे लोग हैं कि इतने सिंपल और इतने ऑथेंटिक है कि मैंने जब जब जो चीज इनको बोली वो उन्होंने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया और फॉलो किया। और ये मतलब मैं कहूंगा कि ट्रस्ट, मैं एक चीज और बता दूं तो हम इंजीनियरिंग में साथ साथ थे, मैं और पारस ने इंजीनियरिंग साथ ही करी थी, तो वो बॉन्डिंग तो थी, पर बाय द टाइम आज इतने टाइम बाद भी हम कनेक्टेड थे, पर इतने कनेक्टेड नहीं थे। बट कम्युनिटी के बाद तो अभी ऐसे हो गए कि इट्स ए फैमिली लाइक। तो आई नो नेहा मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ। मैं चाहता हूं कि आप 2 लाइनें गा करके ये बताएं कि नेहा आपके लिए क्या मायने रखती है। यस सर। सर मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है जो मैं भी गा के सुनाता हूँ सबको। दिल की बेचैनी को आया अब कहीं आराम है, तू न हो तो सोचता दिल तुझको सुबह हो शाम है। Unbelievable. Can we all clap for him? Very good. Beautiful song, Paras. Beautiful song. Congratulations, We love you both and wish you an amazing life together. And जाने से पहले हम एक पिक्चर लेंगे और मैं सभी गेस्ट एंड मेंबर्स जो भी इस कॉल पे मौजूद हैं उनको ये बोलूंगा कि ये लव का सिंबल दिखाते रहिए ताकि हम इस पिक्चर को, इस मोमेंट को कैप्चर कर सके। सर ये कम्युनिटी अब हमारे लिए एक फैमिली बन गई है और जैसे घर में माँ होती है वैसे इस कम्युनिटी में मेरी माँ अमरीश सर है। क्योंकि सर जब मैं स्ट्रगल कर रहा था ड्यूरिंग माई ये जर्नी, तो जैसे मैं खाना शेयर करता था व्हाट्सएप पे, तो धीरे धीरे मैं इम्प्रूव कर रहा था, तो मुझे कमेंट मिलते थे कि बहुत अच्छा कर रहे हो। तो अमरीश सर नजर उतारने वाला इमोजी भेजते थे कि कहीं इसको नजर न लग जाए। वो इतना ज्यादा कनेक्टेड हो गए थे मेरे इस जर्नी से सर। और सर जब जैसे अविनाश सर बीच बीच में जैसे उनसे बात होती थी, वो कहते थे कि पारस तुम कर सकते हो, तुम करो, यू कैन डू इट। मतलब हमेशा एक स्ट्रिक्टनेस वो डालते थे, डिसिप्लिन डालते थे, यस पारस तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये चीज एक अंदर मतलब एक हौसला देती थी। नोइंग यू इज लविंग यू। तो जाने से पहले सिर्फ इतना था बोलूंगा, जितना समय और अटेंशन आज आपने इस सेशन को दिए अपने परिवार के बुजुर्गों को दीजिए। आज का दिन उन्हीं के नाम है, जिसे हम बोलते हैं सिल्वर सैटरडे, ऑल्सो शार्पनिंग द सॉ सैटरडे, स्टोरी ऑफ द वीक सैटरडे एंड सिल्वर सैटरडे।